on the dais, as I was mentioning about Mamta Binani. She is primarily probably one of the most famous faces when you talk about insolvency and bankruptcy in the country, on board of several organizations, and of course a big inspiration for MASA. She's also part of the MASA initiative. A very warm welcome to Mamta ji, and I request Pragya ji already for stating now. Shri Kailash Gupta, I request Kailash Gupta sir to please come on the dais to do the honors of felicitating Mamta ji. Kailash Gupta ji is also there. Shri Sanjay Bhakkar. Thank you so much, Shri Anand to be there. I am Shri Gupta to please honor Shri Sanjay Bhakkar. Thank you so much, Sanjay ji, for being with us here on the stage. It's a pleasure to have you here. Rakesh Khurana from the National Stock Exchange. Rakesh ji, I would request you to come on the dais. IPO, the SME segment from the National Stock Exchange. Thank you so much, Rakesh ji, to be there on the dais with us. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's absolutely an honor to be part of this MASA initiative organized by Mantra Foundation. People coming all the way from Kolkata, a lot of people from the local community, the MSME community. It's an absolute pleasure. I call the MSMEs as my spirit, my endeavor. You know, it's micro, small, medium enterprises. But I define it in my own way because that is the spirit. So all the honorable dignitaries on the dais, my co-panelists here, starting with Mr. Ghakur, then we have Mr. Khurana, and of course we have Mamta. Mamta, I was wondering why all celebrities in Bengal are called Mamta. And we have Mr. Chari and we have Mr. Rajat Baid as well. So we're going to talk about the most important aspect of MSMEs, which is paisa. Funding. You know, if you list out the challenges for MSMEs, you will see it starts with finance, marketing, सामान कहाँ बेचना है जाके, business कैसे बढ़ाना है, skill development, staff कहाँ से लाना है, जितना हमारा budget है उसमें अपने employees को कैसे fit करना है, अच्छे लोग चाहिए, उनको पैसा भी अच्छा चाहिए होता है, technology को कैसे adopt करना है. There are several challenges which MSMEs face across the country. 6.7 crores. This ministry used to be called SME before. जब से भारतीय जनता पार्टी आई, गोयनका साहब बैठे हैं, तब उसको MSME बनाया गया. उससे पहले इसको SME बोलते थे, Small and Medium Enterprises. माइक्रो वालों की तो कहीं गिनती नहीं होती थी. तो जब से माइक्रो की गिनती हुई तो ये 6 करोड़ 70 लाख हो गए. And this also includes very tiny businesses which are there in the remotest part of the country. So we are going to talk about finance, and of course the new opportunity which some time ago has come to MSMEs is stock markets. And we have a very diverse panel here. We've got a merchant banker, we've got somebody from the commodity market as well, we've got somebody who's a company secretary and a lawyer, and she's expert on corporate matters, and we've got somebody who's expert on the IPOs, the MSME and the startup IPOs. And of course, we have the person directly from the National Stock Exchange, to talk about. So I think no better combination here to tell you as to पैसा कहाँ से आएगा. I think अगर मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में बोलूँ तो आपको MSME के लिए पैसा कहाँ से आएगा. आज तक हम क्या करते थे? We used to tap the bankers' doors. बैंकों के पास एप्लीकेशन लगा, लोन की, ये वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए साहब, ये टर्म लोन चाहिए, ये मशीनरी के लिए लोन चाहिए. बैंक वाले दे देते थे लोन. इट इज नॉट दैट दे नेवर यूज्ड टू गिव द लोन्स. आज तक की MSMEs गोयनका साहब बैंकों के सहारे चलती रही. बट दिस न्यू एवेन्यू व्हिच फॉर लास्ट फ्यू इयर्स हैज ओपनड फॉर MSMEs. और अभी वन ऑफ आवर स्पीकर्स हियर वाज सेइंग कि 60 करोड़ का IPO था और 10,000 करोड़ इकट्ठे हो गए. मतलब वो बाकी वापस करने पड़े, ये नहीं कि वो सारे अपने उसने रख लिए, बिकॉज जितना IPO आप उतना रखेंगे, the rest you have to return. But this shows the enthusiasm which the market has for MSMEs.
You can put your money in Reliance, you can put it on one of the Tata companies, you can put it on one of ICICI and State Bank of India, वो सब ठीक है. But this is a new avenue and a very challenging avenue and a very enterprising investment, I would say, which one makes in this thing. So I would like to open the discussion here. And मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा जो मेरे सबसे आखिर में बैठे हैं, जो सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आए हैं. So there's a saying in English, let's hear from the horse's mouth. तो सीधा पहले उन्हीं से सुनते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, what does NSE think about? And how much of NSE constituent of the total capital floating comes from MSMEs as we talk today? और जब NSE की में लिस्टिंग होती है, जब वो घंटी बजती है लिस्टिंग वाली, तो वो जब MSME की घंटी बजती है, ये घंटी अच्छी वाली घंटी है. This is when the bell rings and you start listing your stock starts get trading on the market. So how does because a lot of people they complain that Mr. Khurana, lot of people complain कि हमने साहब MSME का शेयर ले लिया, वो तो ट्रेड ही नहीं होता है, हम तो लेके फंस गए. I on television I do some shows and I keep getting a lot of questions. My money is stuck in my DMAT में shares पड़े हैं, वो तो ट्रेड ही नहीं होते. So how does NSE look at MSME stocks? So what I would request all the panelists, because we've got about half an hour to conclude this discussion, so I would, because we would like to make it as a discussion rather than a monologue. So मैं बीच-बीच में आपको टोकूंगा भी, मेरे को ये अधिकार दिया गया है यहाँ पर. तो आप जब बता रहे होंगे तो आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और बाकी पैनलिस्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे. ओवर टू यू मिस्टर खुराना. मैं कहता हूँ कि MSME इज द बेसिकली बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी. बट हम जब फंडिंग की बात करते हैं तो अपने पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे पहले. अगर मैं बात करूँ बिफोर 2012, ओनली बैंकिंग और नियर डियर और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक SIDBI, NICC. आज 2012 के बाद हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वाई SME कैन नॉट एक्सेस द कैपिटल मार्केट. तो हम NSE और BSE दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जिसको हम NSE SME एमर्ज बोलते हैं और BSE को BSE SME ये लोग बोलते हैं. तो टोटल मिला के दोनों एक्सचेंजेस पे करीबन 1000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें से 480 कंपनीज NSE पे लिस्टेड हैं. और मेरे को इस सेगमेंट में जुड़े हुए करीबन 10 साल हो गए हैं. तो नॉर्थ इंडिया में टेक केयर करता हूँ, तो करीबन 10 साल में मैं करीबन 500 एक सेमिनार कर चुका हूँ इस चीज़ पे, प्लस 110 कंपनीज मैं अपने हाथ से लिस्ट करवा चुका हूँ नॉर्थ इंडिया में. खुराना साहब ये बताइए मुनाफा कितना हुआ इन्वेस्टर को MSME? सर देखिए, मुनाफे पे मैं बात नहीं कर सकता, बट मैं कुछ आपको प्रोमिनेंट नेम दे दूंगा. यू कैन गूगल एंड सर्च इट. आपको प्रतिबंध है ये बोलने का, ये आप नहीं बोल सकते. ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट. ठीक है. मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट नेम दे दूंगा, यू विल सर्च एंड गूगल इट. अकॉर्डिंगली यू विल गेट हाउ SME विल ग्रो फॉर मल्टीफोल्ड. बस मैं इतना बोल सकता हूँ. एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एन MSME टू गेट ऑन बोर्ड विद NSE? हाँ सर, नेक्स्ट उसी पे आ रहा था. टोटल हमने इन कंपनीज में करीबन 10,500 करोड़ रेज किया है. मार्केट कैप इन कंपनीज का मोर देन 1.5 लाख है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ द टोटल फंड रेज. इन 10 साल में हमने डाइवर्सिफाइड बहुत सारी कंपनीज की हैं, डिफरेंट सेगमेंट से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से. कुछ ऐसी कंपनीज भी कही हैं जिनको हम सोच भी सकते कि ये लोग इस बिजनेस से भी पैसा बन सकता है. वेस्ट मैनेजमेंट, इवन स्क्रैप मैनेजमेंट, स्क्रैप से फर्नीचर बनाना, दीज काइंड ऑफ कंपनी वी ऑल्सो डन. कि इन बिजनेस से भी पैसा बन सकता है और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, जो हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि इन बिजनेसेस में प्रॉफिट भी होते हैं और ये लोग इस लेवल पे भी आ सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जोधपुर बेस्ड कंपनी है प्रीति इंटरनेशनल, जस्ट गूगल इट. स्क्रैप से फर्नीचर बनाती है, हर जगह पे इंटरनेशनली बेचती है. कुछ 7 करोड़ का मैं इशू लाया था बहुत पहले, आज आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिएगा.
करीबन 5 साल हो गए उनके इशू को। वैसे आपने मुनाफा बता दिया मना करते हुए, आपने कहा कि 15 गुना हो गए तो 10 रुपए लगाया हुआ सर, 150 रुपए हो चुके। नहीं वो नहीं, मैं ओवरऑल की बात की सर। हाँ तो मैं ओवरऑल का मुनाफा, मैं भी ओवरऑल ही पूछ रहा था, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं पूछ रहा ठीक है। था। तो करीब करीब 10 रुपया लगाया हुआ आपका 150 रुपया ऑन एन एवरेज होता है। तो आपने तो बता दिया, आप तो मना कर रहे थे, मैं नहीं बताऊंगा। सर मैंने से मार्केट कैप नो नो, आई वाज जोकिंग एनीवे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी नॉर्मल। आपकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी पेड अप कैपिटल में 2.5 करोड़ से ज्यादा 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स की हम बात कर लेते हैं। 2.5 करोड़ शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं होने चाहिए पोस्ट इशू। अब दूसरा है कि आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, उसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री 3 साल की अपने को चाहिए होगी, और उसमें से 2 साल प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। These are very important parameters, ladies and gentlemen. Please make a note for the MSMEs who want to really knock the doors. Yes. और पॉजिटिव नेटवर्थ, कंपनी की पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम कंपनी को आगे गो थ्रू कर सकते हैं। साइज जो हमने किया है, सबसे छोटा भी नॉर्थ से किया है और सबसे बड़ा भी हमने नॉर्थ से ही किया है। सबसे छोटा हमने किया है 3.6 करोड़ का, जयपुर बेस्ड कंपनी है, नंदनी क्रिएशंस, वुमेन्स कुर्ती बनाती है। सबसे हाईएस्ट जो एक्सचेंज एनएससी की बात करूं 105 करोड़, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट फ्रॉम नोएडा। दिस इज द हाईएस्ट और लोएस्ट व्हाट वी हैव डन। तो साइज अब आपको पता लगेगा कि सबसे छोटा हमने 360 किया है, तो उसे 3.6 से छोटा इशू हम नहीं लेते। तो हाईएस्ट 105 लिया है, बट वी आर हैप्पी टू डू मोर ऑल्सो। ऊपर की कोई कैपिंग नहीं है। अब बात आती है सर कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सब एंटरप्रेन्योर्स का क्वेश्चन होता है, मेरे कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी इन सब चीज़ों से। डेफिनेटली जब आप पब्लिक मनी ले रहे हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट टू द पब्लिक ऑल्सो। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक नॉमिनल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। एक हाफ ईयरली बैलेंस शीट एडिशनल आपकी उसमें ऐड हो जाएगी ऑडिटेड, जो आपको हमारे पोर्टल पे सबमिट करनी होगी, कहीं पर भी आपको पब्लिश नहीं करनी। जैसे नॉर्मली आप बुक देखते हैं न्यूज़पेपर में आपके प्रिंटेड आते हैं रिजल्ट्स, यहाँ पे आपको कहीं पे पब्लिश नहीं करने, आपको सिर्फ हमारे पोर्टल पे सबमिट करें। रिमेनिंग जो कंप्लायंसेस हैं वो आपके नॉर्मल चलती रहेंगी, जो हम हमारे यहाँ पे आपको रूटीन में सबमिट करनी होती है। कंप्लायंस कैलेंडर वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो करीबन 480 कंपनीज हम लोग लिस्ट कर चुके हैं। वी आर वर्किंग विद सम स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्टिंग दिस एक्टिविटी। लाइक यूपी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, जो कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड होगी उनको यूपी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। हरियाणा गवर्नमेंट उसको 5 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। पंजाब गवर्नमेंट 10 लाख हमने अभी रिसेंटली करवाया, पिछले साल उनसे पहले 5 लाख था, अब उन्होंने 10 लाख कर दिया है। HP गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग 5 लाख रुपीज सब्सिडी, एंड Uttarakhand government they are working on it. Recently we have signed with the MOU with the Uttarakhand government, and they are working on the fund of subsidiary part. This is from my side. Thank you very much. I'm happy to answer the question. That's very interesting. This means that not just you will be proud of being listed on National Stock Exchange, but also your state is proud of that. ये सब्सिडी देना क्या बताता है कि स्टेट को खुशी होती है कि हमारे यहाँ की कोई कंपनी आज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है. So we'll come back to you, Mr. Khurana, after that. In fact, Usi sir, I'll come back with the questions. Let's just, because we've got very limited time at hand. So I'm sure you can also interact on a one-on-one basis with all the panelists. We'll make sure they don't run away soon after, so that you can talk to them. I think because it is related to what Mr. Khurana said, I have with me the other side, क्योंकि आप जब IPO लाते हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट होता है, पर उससे पहले आपको मर्चेंट बैंकर चाहिए होता है जो आपकी बुक बिल्डिंग करता है. अब 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपए मिलने हैं, 30 मिल सकते हैं, 50 मिल सकते हैं, 60 मिल सकते हैं, 100 मिल सकते हैं, कितने मिल सकते हैं, ये आपको मर्चेंट बैंकर कैलकुलेशन करके बताता है. सो वी हैव मिस्टर रजत बैद, who's I'll move to the from my extreme left and your extreme right. I'll move to the other side. Rajat, in very brief, when you do the book building, you know, as a merchant banker, so obviously the entrepreneur or the MSME owner, he wants it to be the maximum. वो तो कहेगा मेरा 10 रुपए का 1000 रुपए का कर दो आप. But what is the main criteria that you see where my 10 rupee company can be listed at 100 or 110? Because let's not forget कि जैसे ही आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, by the way,
जितने दुनिया के अमीर लोग हैं गोयनका साहब, जो अल्ट्रा रिच है इस टाइम 15 अल्ट्रा रिच है दुनिया में। अल्ट्रा रिच होता है जिसके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा का हो। $1 ट्रिलियन, या मैं उसको कन्वर्ट करता हूं उसमें रुपए में, वो आपको बाद में नंबर्स बताऊंगा। बट उनका मेनली स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट्स की वजह से वो रिच हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, पर मेनली उनके पास स्टॉक्स हैं। सो that is what Rajat is in charge of. So because your net worth suddenly increases of the holding that. So in very brief, what is the criteria that you see before book building? I mean, what makes you put a value to it in very brief? धन्यवाद शरद जी। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आई थिंक ये कॉमन एक डिस्कशन पॉइंट है जब हमको मीटिंग से मिलता है, जब हम प्रमोटर से मुलाकात करते हैं। 12 साल के करियर में मैंने शायद 2000 से ज्यादा प्रमोटर से मुलाकात करी होगी। बहुत नेगोशिएट करते होंगे, बढ़ा दो यार थोड़ी। नहीं देखिए, वो सिंपल सी बात है। आज मैं भी अपनी कंपनी लिस्ट कराऊंगा एज ए मर्चेंट बैंकर या किसी भी कैपेसिटी में, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिले। और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उन प्रमोटर्स ने अपने जीवन के 15, 20, 25, 30 साल उस बिजनेस को दिए हैं। और आज अगर कंपनी लिस्टिंग ले जाएगी तो कोई भी प्रमोटर ऑनेस्टली, जिसके दिल में एक प्राइड है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो चाहेगा कि उसकी कंपनी का मैक्सिमम वैल्यूएशन मिले। बड़ी इमोशनल बातें करते हैं, अरे यार हमारे फादर का बिजनेस है, बड़ी मेहनत करी है, खून पसीना बहाया है। देखिए इसमें क्या है शरद जी, हमको एज ए मर्चेंट बैंकर बैलेंस करना होता है प्रमोटर की एक्सपेक्टेशन जो पैसा चाह रहा है और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन जो पैसा दे रहा है। जहाँ पे कॉमन कंसेंसस मिलेगा, डिमांड सप्लाई मीट करेगी, वहीं पे अल्टीमेटली आईपीओ का वैल्यूएशन सेटल होगा। अगर मैं प्रमोटर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहूंगा तो इन्वेस्टर्स ठगा हुआ महसूस करेगा, इन्वेस्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहूंगा तो प्रमोटर ठगा हुआ महसूस रहेगा। तो मर्चेंट बैंकर के तौर पे एक्सचेंज द्वारा, सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हुए और मार्केट फोर्सेस के द्वारा एक्ट करते हुए हमको इंश्योर करना पड़ता है। गाली भी पड़ती है? नहीं देखिए सर, भगवान के आशीर्वाद से प्रोफेशन ऐसा है कि पैसा देने जा रहे हैं तो गाली तो नहीं मिलती। जस्ट ऑन द लाइटर साइड, प्रोफेशनल एजेंसी के तौर पे मर्चेंट बैंकर बहुत रेगुलेटेड है एक्सचेंजेस द्वारा, सेबी के नॉर्म्स द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो मर्चेंट बैंकर हरदम नपीतुली बात करेगा और एक अच्छे इंटेंशन से प्रमोटर को गाइड करेगा कि आप मार्केट को वन टाइम एंट्री के तौर पे मत देखिए। आईपीओ सिर्फ एक एंट्री का तरीका है जिसके थ्रू आप मार्केट में घुस रहे हैं। असली वेल्थ आपकी क्रिएट होगी मार्केट में 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद। यही एग्जाम्पल है, जैसे आपने अल्ट्रा एचएनआई का एग्जाम्पल दिया। आज के रिलायंस, इन्फोसिस या सारी ग्रोइंग मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज ने शुरुआत करी अपनी जर्नी की आज से 15 साल पहले। कुछ उन्होंने करेक्शंस देखे, कुछ बूम साइकिल्स देखी और इन्हीं के सम टोटल से आज वो वहां पहुंचे जहां पहुंचे। इनफैक्ट जैसे आपने प्रत्यक्ष कहा कि आज जिन बैंक से एमएसएमईज लोन ले रहे हैं वो सभी बैंक भी लिस्टेड हैं। कोई भी बैंक इंडिया में ऐसा नहीं है जो अनलिस्टेड हो। अल्टीमेटली बैंक्स ले रहे हैं इक्विटी मार्केट से सस्ते में पैसा और दे रहे हैं डेट के तौर पे लोन्स। सो आज हम जो समझ रहे हैं मर्चेंट बैंकर के तौर पे, जब हम कंपनी से मुलाकात करते हैं तब उनका बिजनेस समझते हैं, पिछला हिस्ट्री क्या रहा है, पिछले 3 साल 5 साल का, आने वाले 3 साल 5 साल का उनका क्या प्लान है। क्या उनके लिए आईपीओ लाना एक वन टाइम एक्टिविटी है जहाँ पे उनको लगता है कि बस हमारा बिजनेस अब यहाँ से और प्रोग्रेस नहीं करेगा तो जो बढ़िया मिल सकता है लेके चले, रिटायर हो जाए। तो वहाँ पे तो मर्चेंट बैंकर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जहाँ हमको लगता है कि इन बिजनेस के अंदर आज एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं कि अगर इनको एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी मिले और पैसे के साथ साथ में क्रेडिबिलिटी, विजिबिलिटी मिले, इनके वेंडर सप्लायर्स में कॉन्फिडेंस आए कि जिस कंपनी के साथ हम 15 साल से काम कर रहे थे उसने एक नई ग्रोथ की छलांग लगाई है, इनके एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस आया कि हमारी कंपनी एक नए ऑर्बिट में जा रही है, और प्रमोटर्स जो खुद बिजनेस कर रहे हैं उनमें भी एक नई ऊर्जा, एक नया जज्बा आता है जो वो लिस्टिंग कराते हैं। हमने प्रमोटर्स देखे हैं जो पहले 7 बजे ऑफिस से चले जाते थे क्लब के लिए और वो लिस्टिंग होने के बाद 9-9 बजे तक काम कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपने देखा है, आपके रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, ममता जी हैं। लिस्टेड कंपनीज हर क्वार्टर में कोशिश करती है कि अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट की 7.5%, हम किस तरह से 7.6% ला सकते हैं। और अनलिस्टेड कंपनी कोशिश करती है कि अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 5 करोड़ तो मैं इसको 3 करोड़ कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, प्रोफेशन के तौर पर हम सभी जानते हैं क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी को कोई टैक्सेशन एडवांटेज नहीं है। So Rajat, would you like to reveal the formula which you used to make that 10 rupee share go upwards? इसमें क्या देखते हैं हम शरद जी, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप जिस कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज कौन सी लिस्टेड है। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई ऑटोमोबाइल एंसिलरी कंपनी से हम बातचीत कर रहे हैं तो उसके और लिस्टेड पीयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आज 36 कंपनीज इंडिया में ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से लिस्टेड है, जिसमें से 20 कंपनीज लार्ज कैप है, कुछ स्मॉल कैप है। वो कंपनीज अपने प्रॉफिट के सामने किस मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ है, बाजार पूंजी जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, और उसका प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का है, तो हम ये बोलेंगे 20 गुना के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। आप अनलिस्टेड कंपनी के तौर पर जा रहे हैं बट आप उस कंपनी से 5 गुना छोटे हैं तो आपको 20 गुना का वैल्यूएशन तो नहीं मिलेगा,
हाँ, हो सकता है कि आप 12 से 14 गुना के वैल्यूएशन पे आए, यानी अगर आपके लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट, सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर जैसे मार्च 2024 का प्रॉफिट आपका 5 करोड़ रुपए का है और आपके कंपनी को 10 गुना का मार्केट कैपिटलाइजेशन या पी रेशियो मिल रहा है, तो आपका वैल्यूएशन 5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10 50 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन हो जाएगा। 25% का आप डाइल्यूशन कर रहे हैं आईपीओ में, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड है आईपीओ लाने के लिए इंडिया के अंदर, तो 50 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के सामने आपका 25% का डाइल्यूशन जो आप लेके आ रहे हैं, तो 12.5 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ साइज हो जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है जिससे हम लार्जली वैल्यूएशन कंपनी का कैलकुलेट करते हैं। And I must say here that this is the magic formula for you becoming rich overnight, because आपके पास जो shares हैं उसकी वैल्यू जो भी रजत करके देते हैं, सडनली आपकी नेट वर्थ उतनी चढ़ जाती है। That makes you rich overnight. सडनली पता लगता है आपकी वैल्यू 5 करोड़ थी गोयनका साहब, दूसरे दिन पता लग जाता है मैं तो 500 करोड़ का हो गया बैठे बैठे। And it is all thanks to merchant bankers, am I right? आई थिंक पूरा इकोसिस्टम और इन्वेस्टर्स जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस भर रहा है, वो समझ रहे हैं कि अब जो बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज जो हर साल 5, 6, 10% ग्रो करेंगी, उनसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी उन कंपनीज में जो साल दर साल 25-30% बढ़ सकती हैं, तो वेल्थ वहीं बनेगी। इसलिए हम कई एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे प्रमोटर्स जो पहले काफी रिच थे, लेकिन उनके रिचनेस का या उनके वेल्थ का पैरामीटर घर की पूंजी, गाड़ी, सोना चांदी होता था, जैसे वो लिस्टेड हुए, आर के दमानी जी डीमार्ट सालों से था लेकिन वो इंडिया के रिचेस्ट में शामिल नहीं थे, लिस्टिंग होते ही 47th रिचेस्ट बने, उसके बाद 7th और आज 5th रिचेस्ट बन गए। आई थिंक मैनकाइंड फार्मा से हम जानते हैं, ऐसा नहीं उन्होंने कंपनी अभी स्टार्ट करी थी, 25 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन लिस्टिंग के बाद किस तरह से वेल्थ क्रिएट हुई और इंडिया के टॉप 4 रिचेस्ट लोगों में आ गए, क्योंकि उनका वैल्यूएशन 100% ऑफ बुक वैल्यू एज ए प्रमोटर से शिफ्ट हो गया 75% ऑफ लिस्टेड मार्केट। Absolutely, that's precisely what I was saying, Rajat. And on the same note, we have Mr. Anand Chari with us, who's also involved with MSME and startup listings. So a follow-up question, because you come from pretty much the same. You are on the consulting side of. I work with Bombay Stock Exchange. So you work with BSE. So a follow-up question, Anand, which I have out of what Rajat said is, we keep hearing about these companies, पैसा तो ले लिया मार्केट से 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़, और उसके बाद नीयत खराब हो गई, मतलब वो लगा कि पैसा ले गया, हम अमीर बन गए, अब बस अब काम वाम क्या ज्यादा चलाना है, पैसा तो आ गया, अपनी इक्विटी को इधर उधर करके धीरे धीरे करके बेच दिया। सो how does the stock exchange deal with this problem, which is why I was coming to, in fact that's a question I would have raised to Mr. Khurana also, because both the stock exchanges have to face this problem, that when the disappearing act happens, when suddenly you find knowingly or unknowingly, sometimes the businesses fail also, lot of businesses fail, they are not able to reach their targets, and they are not able to shape their future in the way they would have carved out. So what does the stock exchange do, Anand, in that case? I mean, does stock exchange help the investors? Because I can tell you there are millions and millions of investors who are stuck with these kind of shares which either do not trade, or the investors or the promoters have run away, or they've shut down. So what does the stock exchange do in that case? शरद जी, तो हम लोगों ने भी देखा है कि जितनी कंपनियां यहाँ पे सूचीबद्ध हो रही है, लास्ट 12 साल में बीएसए में 507 कंपनियां सूचीबद्ध हुई है, तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी कंपनी आई है, पहले जितनी भी लिस्टिंग हुई है उनकी काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट रहती है। हो सकता है कि कोई बिजनेस मॉडल जिस तरह आप बता रहे हैं या इंटेंशंस है, ऐसा कोई कंपनियां ऐसा मिस्टेक हो सकता है या प्रॉब्लम आई होगी। जितनी भी कंपनियां आती हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज ए रेगुलेटर, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है कि हमने सभी लोगों को, जितने लोगों भी आते हैं, हमने बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ से देखें इसको। पहली बात क्या है कि जितने भी प्रमोटर यहाँ आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू लिवरेज द फंड्स, उस हिसाब से बिजनेस में कैपेसिटी बिल्डिंग से लेके सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 5 से 10 साल के एक होराइजन देखते हुए। तो हमको दिखता है कि जो वॉल्यूम आपने बताया, काफी लोगों को लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बेच नहीं पाते, ऐसा नहीं है। आज के तारीख में करीब करीब 80 से 100 करोड़ का वॉल्यूम आपको एसएमई प्लेटफॉर्म में काफी वॉल्यूम्स होते हुए दिख जाएंगे, आपको डेटा साइट में भी दिख जाएगा, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आनंद, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एक और प्रॉब्लम हमने इसी से रिलेटेड देखी, तो मैं इसमें जोड़ दूं जिससे आप वो भी आंसर करते। बहुत सारे एमएसएमईज में सक्सेशन प्लान नहीं है, तो वो लाला जी जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, अब उनकी फोटो टंग गई, हार लगा हुआ है उस पर, आगे कोई बिजनेस करने वाला नहीं है, तो देन व्हाट डू यू डू?
Sharad ji, it's a question which can be an objective question. Possibly, I can't really relate to some questions where really people have done something wrong and no successor plan has been there. I'll tell you. दुनिया छोड़ के जाना तो कुछ नहीं, वही बोला कि ये मुझे भी नहीं पता चलेगा वो कब जाने वाला लिस्टिंग के बाद या कुछ है. आनंद सर की बात को ऐड करते जो आप बता रहे हैं शरद जी, सक्सेशन प्लानिंग में एक्सचेंज ने कई बार ये रोल निभाया है कि ऐसी कंपनी जिनका सक्सेशन प्लान नहीं होता था उनके लिए लिस्टिंग तो एक बहुत बढ़िया टूल है, क्योंकि आज लिस्टेड ही वो कंपनी है जहां पे आप प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हैं. आज अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी बाहर का प्रोफेशनल नहीं आना चाहेगा. तो हमने सो द मैसेज इज कि जब लाला जी खुद काम कर रहे हैं, मैं लाला जी बहुत रिस्पेक्टिवली कह रहा हूँ, आई डोंट मीन एनी लाला जी डिसरिस्पेक्ट. तो वर्ल्ड ओवर रिस्पेक्टेड नाम है. हाँ, तो जब वो लाला जी ने बिजनेस शुरू किया तो जब आप लिस्टिंग करते हैं तो ये भी एक फायदा है कि आपको कुछ मैनेजर्स ऐसे रखने पड़ेंगे जो आपके जाने के बाद आपके परिवार का भी ध्यान रखेंगे और आपकी कंपनी का भी ध्यान रखेंगे. Am I right? ऐसी कंपनी देखिए जहाँ पे CFOs या CS ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, वही कंपनी जब लिस्ट हो गई तो बाहर के कैंडिडेट हैं, सिटी के बाहर के कैंडिडेट भी आने के लिए इच्छुक हैं. कि आपको प्रोफेशनल्स कंपनी में लानी पड़ेगी, एक बिजनेस मॉडल फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क लगा हुआ है निवेशक का पैसा. तो जितनी भी कंपनियां जो ये वैल्यूएशन भी बोल रहे हैं या रजत जी ने बताया कि पी मल्टीपल है जिस हिसाब से करते हैं, प्रिडोमिनेटली हमने देखा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से जो एसएमई कंपनी आ रही है 10 से 12 पी में सूचीबद्ध हो रही थी. जिस तरह ने एग्जांपल बताया करीब 30 करोड़ का, इसमें 10,000 करोड़ आई थी. इसमें हमने देखा काफी जगह में 15 से 20 पी मल्टीपल में भी कंपनियां आई है. तो हम लोग ने देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म है लास्ट 12 साल से हमने एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें करीब 7,000 से ज्यादा हमने फंडिंग की है. आज 1.5 लाख करोड़ की तो वैल्यूएशन बनी है बीएससी की. सो जितना हमने देखा है कि जितनी भी कंपनी आई है परफॉर्म की है, और आउट ऑफ दिस 577 कंपनीज जो लिस्टेड है उसमें से 183 कंपनीज ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं मेन बोर्ड में. तो हमने ये देखा कि कंपनी जो है लिस्ट होने के बाद काफी प्रोफेशनल्स आने के वजह से जो सक्सेसर प्लान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्टेड हुई हैं, और प्लस उनकी जो विजन है वो भी टोटली डिफरेंट हो गई है, और ग्रोथ लेवल पे वो देख रहे हैं कंपनी को नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाएं, जितनी पूंजी उन्होंने मार्केट से या प्लेटफॉर्म से उन्होंने इकट्ठा किया. Lovely, I think that's very reassuring. Directly being from capital market. Out of this 1,000 plus company listed, the companies which came between 2012 to 2015, there that problem was there. But the companies which has come from 2016 to 2024, It is not there. they have ये become आप multi-mega. you are talking of the problem वो जो मैंने फोटो वाली बात करी. हाँ, उसी उसकी की बात. I will like to mention here शरद जी कि वो थोड़ी सी 100 कंपनियां जी. जिनके आदमी शोर ज्यादा मचाते रहते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट आज 20 गुना हो गई, जी. 25 गुना हो गई, कोई 5 गुना में बाहर चला गया. राकेश जी ने डायरेक्टली बात नहीं की, कोई 10 गुना में बाहर चला गया. हमारे पास तो वी हैव इन्वेस्टर्स विद अस. Yeah. Today the market bankers as well as the not only the both exchanges, even regulator has become very strict. At least Sir, in last 3 years, not even one company has come. बिकॉज हम लोग जब कॉमर्स की पढ़ाई है सबरवाल साहब शुरू होती है स्कूल में, तो उसमें 11th 12th में शायद शुरू होती है, तो उसमें जब अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो एक वर्ड पढ़ाते हैं परपेचुटी, कि आपका जो बिजनेस जब हम अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग के सिस्टम में परपेचुटी अज्यूम करते हैं कि ये बिजनेस चलता रहेगा, मैं रहूं या ना रहूं बिजनेस चलता रहेगा. दैट इज व्हाट आवर लर्नड पैनलिस्ट हैव एम्फसाइज्ड. मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से हटके I'd like to take you to a different dimension altogether. We have with us Mr. Gakar, who's very well experienced on commodity markets. जीरे की बात हो, लेड की बात हो, जिंक की बात हो, और वो शाही गोल्ड की बात हो, सिल्वर की बात हो, क्रूड ऑयल की बात हो. गाकर साहब, मेरा आपसे जो सवाल है, अभी यू कम फ्रॉम कमोडिटी ट्रेडिंग बैकग्राउंड एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन कमोडिटी ट्रेडिंग. बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो ये पूछते हैं गाकर साहब के अगर हम जीरा खरीदते हैं या हम लेड खरीदते हैं तो वहां पर हम डिलीवरी तो ले नहीं सकते, हालांकि डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, एमसीएक्स में भी है डिलीवरी का कॉन्सेप्ट. सो पीपल शुड कमोडिटी मार्केट ओनली बी ट्रीटेड as short term trading platform, or can we also become investor in commodity trading? That's my direct question to you, sir. Okay, thank you very much for having me here. My guru is sitting there, Sabharwal Saab. So I think commodity market का जो knowledge है, it is, though we keep breaking our heads with even professional bodies like CAs and CS and different SME forums. The objective of a commodity derivatives platform is little different from what you see in the stock market. Stock market where you look for long-term returns and creation of wealth through various modes of investment.
commodity market is for price risk management. So that is the broad objective of commodity market. So मोस्टली लोगों ने टर्म सुनी होती है जो इस मार्केट के होते हैं, वॉलेटिलिटी, सो पीपल नो अबाउट वॉलेटिलिटी. सो एज्यूमिंग दैट देयर इज 10% वॉलेटिलिटी इन गोल्ड, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 1000 टन्स ऑफ गोल्ड विच इज लाइक 7.5 लाख करोड़ का हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं. सो वी आर लुकिंग एट ए प्राइस रिस्क ऑफ 75,000 करोड़. दैट इज वेरी सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड. So this market is mainly for price risk management. People also come to commodities market to invest because commodities, inflation, they are kind of ride on each other. If you have commodities in your portfolio, probably you will be able to beat inflation. People have seen that in the case of precious metals like gold and silver. So deliveries होती हैं हमारे यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि it is only a market for derivative trading. So in the last, so since 2004, we have seen around 140 tons of gold being delivered. So 140 टन, जैसे आप 1 ट्रिलियन का बोल रहे थे कि अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 140 टन गोल्ड को जब आप कन्वर्ट करोगे तो in multiples of 10 grams it would be too much. Around 5,000 tons of silver. Then in the last 4 years we have delivered, actually physically delivered on trucks 4 lakh tons of various industrial metals. अब जो इंडस्ट्रियल मेटल जो कंज्यूम करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का मोस्टली नॉन ग्लैमरस डिपार्टमेंट होता है. मतलब वो मार्केटिंग इज वन साइड, बट मोस्टली जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं दे मेक, सो दे सर्वाइव ऑन दिस मार्जिन ऑफ बाइंग एट द लोवेस्ट एंड सेलिंग एट द हाईएस्ट. सो इफ यू आर एबल टू बाय एट द लोवेस्ट, that kind of wins you half the battle. So if you are able to price your raw material correctly, so this is a platform where you can come, you can look into the future, you can look at the prices say 3 or 6 months into future, decide whether to buy it now or not. हम लोग इस मार्केट की अवेयरनेस करने के लिए we keep engaging with various professional bodies, academic institutions. मारवा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमने सर आपके कॉलेज में we have done Asian Business School में recently we did a program. And we are going to enter into some kind of understanding also with your institution. That is a beautiful campus, Noida wala. So with that intent, we are kind of trying to. Sanjay, just very quick question. You know, you spoke of 140 tons of gold being delivered from the warehouses, you know, by the commodity market also. तो ये वो लोग हैं जो derivatives में जिनके सौदे फंस गए थे, क्योंकि ये लोग नहीं तो बाहर से जाके क्यों नहीं लेते, इन्होंने MCX के थ्रू क्यों डिलीवरी दी? नहीं, वैसा नहीं है. Let us not try to sensationalize in the sense. Sir, it's my duty to sensationalize the discussion. So no, don't get me wrong. I mean, what I mean is to make it interesting for the audience. I'll tell you. So assume that you are importing gold. Obviously, that would be priced at certain level. Initially, before MCX came into existence, आपने गोल्ड मंगाया ऊंचा माजनी या चांदनी चौक में, you would sell to people who are on the buy side. So MCX gives you visibility of prices on the MCX platform. Now you have 2 inputs as far as prices are concerned. One is the Kucha Majani or Chandni Chowk market or Bombay ka Sarafa Bazaar. The other is MCX. Whichever platform is giving you better price, you would try to deliver on that platform. It is as simple as that. आप गोल्ड खरीदने गए, आपने ज्वेलर से पूछा क्या रेट है, he'll say 75,000. If you are able to buy gold at 74,000 at MCX, you would prefer to buy on MCX. So that is the beauty of this platform. This gives you additional window to price on the buy side or on the sell side. लोग कहते हैं कि commodity market थोड़ी complicated है, but we have a product called mentha oil, जिससे नवरत्न तेल and freshness and all that toothpaste में use होता है. That is typically produced by farmers. आप किसी भी farmer को who is producing mentha oil उससे पूछो कि क्या भाव पे बेचेगा, he would look at the MCX price first and then decide कि मेरे को क्या भाव में बेचना है. It is not a very difficult market to understand. Raw material very simple, pricing very simple. So in a Agreed, sense sir. it is easier. Completely agreed. And you know, we also have Mamta with us on my left and on your right. You know, so Mamta, because you're a company secretary, you're a lawyer, and coming from West Bengal, you know, with oodles of experience behind you.
you know, what are the challenges which, because we are talking of funding here, we are talking of listing, we are talking of book building, we are talking of both these stock exchanges. What are the challenges with normally the MSMEs face if they plant this thought in their mind that we have to go for listing and we have to go for funding from the market? What are the basic challenges? I mean, both legal, vis-a-vis compliance and vis-a-vis operational. I'm sure you must be meeting a lot of clients of that kind, huh? पर आपने मैंने जो पहले सवाल पूछा था उसका भी जवाब देना है कि ये बंगाल में सारी सेलिब्रिटीज ममता क्यों कहलाती हैं? Thank you, Sharad ji, and thank you to Pragya and Vibhor ji for really doing this so well. Time is short, so I just want to tell you that few things. Number one, लोग पेपर वर्क से बहुत घबराते हैं. पहली सबसे चैलेंज आती है कि उनके कोई बुक्स ठीक से होते नहीं है. Thankfully, grey market से हम अब, we have shifted to more organized sector. So we have started seeing books well, but still we see that everything, it just needs to be in your books. हम बात करते हैं कि PAT, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि टैक्स कट जाएगा 30%, whatever, wherever, whichever format you are in, वो कट जाएगा. PBT देखा नहीं जाता है, PAT देखा जाता है. तो जब पैट की बात करते हैं तो अगर हमें पब्लिक इशू में जाना है एसएमई सेक्टर में, मोटा मोटा कहा जाता है कि 5 करोड़ का पैट हमारे पास रहे तो अच्छा है. अब 5 करोड़ का पैट करने के लिए आपकी टर्नओवर कहीं ना कहीं 50-60 करोड़ की या फिर कहीं 20-30-50 करोड़ के आसपास की होनी होगी. अब हम जब वो बैलेंस शीट देखने जाते हैं तो कई बार लाला जैसा सर कह रहे हैं, उसी वर्ड को अगर मैं पुट करूं तो वो देखते हैं कि वो डिवाइडेड हो जाती है. कुछ बैलेंस शीट ए में है, कुछ उनकी कंपनी है बट बैलेंस शीट बी में है, कुछ सी में है. एक में ट्रांसपोर्ट का काम किया जा रहा है, एक में कुछ, एक में कुछ. तो उन तीनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही कंपनी जा रही है लिस्टिंग के लिए. तो अब हम आपको सुझाव ये देते हैं कि आप सब चीजों को कंसोलिडेट करिए तो आपकी बुक्स आपको खुद को बेहतर दिखेगी. दूसरी बात, 3 साल पुरानी आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए. उसमें जरूरी नहीं है, आई नो, आई मीन आई विल बी द लास्ट स्पीकर, यू ऑलवेज फेस द ब्रंट, बट Pragya has also given me इशारा. I'll just finish myself in 2-3 minutes. 3 साल पुरानी आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कंपनी बन के ही 3 साल पुरानी होनी चाहिए. अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप थे या फिर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे तो उसकी भी एज 3 साल के एज में काउंट होगी, ये आप ध्यान रखिए. तो आज से ही ये जो एक सफर है, आपको 3 साल 2 साल इस सफर को तय करना होगा, तभी आप उस मुकाम पे पहुंच सकेंगे. आज से आप तैयारी अगर करें तो बच्चों की भी ब्याह करते तो हम 2-3 साल प्लानिंग करते हैं ना, उसी तरह ये भी एक ब्याह के बराबर है. आपको अपनी तैयारी करनी है कंपनी को उस मुकाम तक लेकर जाने के लिए, और उसमें आपको बहुत लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प करने के लिए मिलते हैं. तो बस तीसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म लेकर आइए. हम हर चीज में ये सोचते हैं, हालांकि इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हाथ है कि हमें उन्होंने किसी भी तरह बाय द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी दे हैव टॉट अस दैट कंप्लायंस इज मच अबव एवरीथिंग एल्स, बट स्टिल हमारे पेपर चिथरे बिथरे रहते. अगर आप पब्लिक इशू में जाते हैं और अगर आप कहते हैं कि मैं बीकॉम हूं तो आपको बीकॉम की सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी. अगर आप कहते हैं आपके 2 बच्चे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 2 बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी. उनकी आपको सब. What I'm just trying to say is that somewhere or the other we are just very careless with our paperwork. We just need to put them in place, and every bit that you say in your document, that is called the draft red herring prospectus, you have to back it by data and certificates and everything else. If you're a BCom graduate, you have to produce the BCom graduate certificate. So all in all, just trying to tell you that it's not such a rough and tough journey. Everything starts in your mind. अगर आपका मन और आपका जो दिमाग है वो ये बोल देता है कि मुझे ये करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते. बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और आपको अपने साथ एक बहुत अच्छा एडवाइजर रखना होगा जो आपके साथ साथ आपके पग पे पग रख के चले. 5 lakh MSMEs and Bengal now claims to be housing the second largest MSMEs in the country.
That's very appreciated. So, ladies and gentlemen, यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, खुराना साहब, संजय काकर जी, ममता और आनंद और रजत, उनके पास खजाना है और मुझे वो स्लिप्स भी लिख के दे रहे हैं. इतनी ज़रूरी बातें हैं, बट यू नो टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन. और मुझे जो हमारी मुख्य ऑर्गेनाइजर है प्रज्ञा, वो दूर से इशारा कर रही है कि टाइम हो गया. और इधर पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी था. मैं यू नो धर्म संकट खड़ा हो गया है कि क्या बात की जाए. बट आई थिंक द ऑर्गेनाइजर reigns supreme. So we will have to listen to. She's organizing it. She's taken a lot of pains coming all the way from Kolkata to organize it here. चाइना में क्या हो रहा है कि वीडियो कैटलॉग के थ्रू प्रोडक्ट बेचा जा रहा है. टिकटॉक जैसी ऐप दो इंडिया में बैन है, बट यूएस और चाइना में वीडियो कैटलॉग के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं. दैट वीडियो कैटलॉग्स कम्स थ्रू द टेक्नोलॉजी ओनली, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ एआई. सो बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू लुक. जैसे एक शर्ट है, आपने शर्ट की फोटो देखी, शर्ट को किसी और ने पहन रखा है, उसकी फोटो देखी, बट वो शर्ट आप पर कैसी लगेगी, एंड दैट कम्स फ्रॉम एआई. अगर उस तरह की कैटलॉगिंग होगी, उस तरह का प्रोडक्ट दिखाने का तरीका होगा, तो जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में आज की डेट में बिक रहे हैं बट कम बिक रहे हैं और चाइना ज़्यादा बेच पा रहा है, तो इंडिया ज़्यादा तब बेच पाएगा जब इंडिया इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा अपने कैटलॉग में और अपने प्रोडक्ट्स को जो अच्छे हैं क्वालिटी में चाइना से यूएस में दिखा पाएगा तरीके से और बेच पाएगा. आपने शर्ट का नाम लिया विभोर जी और सबरवाल साहब. मैं अभी पालिका बाजार गया था एक हफ्ता पहले, और मेरे कान में थोड़ा सा कुछ फंस गया था, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो वहाँ शर्ट वाले बैठे रहते हैं बहुत सारे. तो एक आदमी ने मुझे पहचाना, बोले आप टीवी में काम करते हैं. तो यंगस्टर्स आए, बोले आप असली हैं. मैंने क्या मतलब? मैंने असली का क्या मतलब? मैं ही अभिनव चतुर्वेदी हूँ. शर्ट खरीदा था मैं. तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा यार गूगल कर लो, तो पकड़े गए वहाँ पे. तो ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि यू नो विद द मार्केट्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ड्रिवन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. जितना मार्केट इंडिया का बड़ा है, आई थिंक इट्स बहुत कम समय रह गया जब हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे. हमें किसी की सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है.